हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने लाइफ के मजे में होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू वेरी ब्यूटीफुल डे। This is Ms. Zunaira Khan and you're watching Almed Zunaira. Today I'm going to study Science Book File Grade 7 3rd edition book again. And as you all know that we are studying chapter number 2, Human Respiratory and Circulatory System. Today in this chapter we will study energy without oxygen in animals, or we can say in humans. Okay, so let's start. First we read. Most plants and animals usually respire aerobically, using oxygen to release energy from food. However, sometimes due to increased breathing rate, cells cannot get oxygen quickly enough. In this case, respiration can also take place anaerobically without oxygen. Walking is an aerobic exercise because the body gets enough oxygen for aerobic respiration to supply all the energy needed. Running fast is an anaerobic exercise. No matter how fast a person breathes or their heart beats, the body cannot get enough oxygen for aerobic respiration. This time, anaerobic respiration supplies the energy needed. However, anaerobic exercise cannot continue for a long time. How does anaerobic respiration work? Instead of the glucose being broken down completely into carbon dioxide and water, it breaks down into lactic acid. Lactic acid is a sort of halfway stage between glucose and carbon dioxide in water. Anaerobic respiration is not the best way to get energy from glucose because the glucose is not completely break down and much less energy is produced. Lactic acid also causes muscle fatigue. However, anaerobic respiration is very useful when energy is needed in a hurry. Anaerobic respiration can be summarized like this. Glucose is equal to lactic acid plus energy in small amount. And glucose is equal to lactic acid with oxygen, carbon dioxide plus energy in water. Okay, what is aerobic respiration and what is anaerobic respiration? आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर होगा कि aerobic respiration किसे कहते हैं और anaerobic respiration किसे कहते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको 2 स्टिकी नोट्स पर लिखे हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी डिफिनीशन करेंगे। Aerobic respiration. What is aerobic respiration? The breakdown of glucose in presence of oxygen is called aerobic respiration. Anaerobic breakdown of glucose in the absence of oxygen or of any air is called anaerobic respiration. एयर में ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, हवा हमारे पास एक मिक्सचर है गैसेस का, लॉट ऑफ हमारे पास क्या होते हैं गैसेस एयर में। ठीक है, तो इसकी कुछ सिंपल डेफिनेशन ये होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, दूसरा इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी, मतलब जो ग्लूकोज होगा वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, उसमें तोड़फोड़ जो है वो पूरी होगी। तीसरा, इसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी वो थोड़े अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट पे एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज होगी। चौथा, ये हमारी लाइफ में नॉर्मली थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये हमारी जिंदगी में नॉर्मली होता रहता है। ठीक है, और इसकी एपीटी क्या होगी 38%। एपीटी हम कह सकते हैं टाइम को। ठीक है, टाइम के लिए होगी 38%। उसके बाद है एनारोबिक। एनारोबिक में इसके ऑपोजिट है सब, मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगी लेकिन एयर के एब्सेंस में, एयर के गैर मौजूदगी में। दूसरा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की। तीसरा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। चौथा, ये शॉर्ट टाइम के लिए होगी, और ये हमने बोला था नॉर्मली, और ये शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा, इसकी एनर्जी जो स्टोर होगी एपीटी में वो कितनी होगी 2%। इसका 38 और इसका 2%, बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे के। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये कुछ वर्ड इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक बात बताई गई है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड हमारे पास एक हाफ वे है, स्टेज है, एक टाइप ऑफ स्टेज है जो किसके दरमियान में होता है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के दरमियान में जो हाफ वे स्टेज होता है उसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। वर्ड इक्वेशन हमारे पास ये किस चीज का है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली एरोबिक रेस्पिरेशन का, जब ग्लूकोज की पूरे ब्रेकडाउन हो जाती है उसको। ठीक है, और विदाउट ऑक्सीजन कुछ इस तरह होता है एनारोबिक का, और ये एरोबिक का और ये एनारोबिक का। तो ये इसके वर्ड इक्वेशन है।
तो जो आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और इस टॉपिक आपको समझ आ गया हो तो प्लीज 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 एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में नए जज्बे नए जोश के साथ बहुत ही जल्द। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।